Today we will discuss the duties and responsibility of the front office staff. Okay, one by one. Okay, we have discussed in yesterday class, in previous classes, the medium hotel organization chart, the front office, where we have seen the hierarchy of the front office staff in medium hotel, in large hotel, and as well as in the small hotel. Now moving further to the duties and responsibilities of the front office staff. Okay, what are the duties and responsibility of the front office staff? Okay, we will see all these component in great detail. Okay, now the first part is office front office manager. So here the front office manager is the topmost hierarchical position, where the front office manager is the head of the all the desk of the bell desk, reception, reservation. Okay, so these all the desk headed by the front office manager. So the main responsibility is he is the head of the department first. Second, he ensured the smooth running of the departments. Always he ensure the smooth running of the departments. He sees to it that his staff report to duty on time and do all these things in proper manner with the proper uniform. Okay, and he also ensure that the courteous and personalized services of the guest to the guest, whenever guest is required personalized and great services from expect great services from the hotel staff. He will also ensure that his staff always courteous and serve to the guest in courteous manner. Okay, and he deals with the front office correspondent representatives and the reservation staff. Okay, and inquiries, so and so forth. Okay, he also ensure the all the deals of the front office correspondent will be handled by the front office manager only. डील्स मतलब कोई भी इसकी अगर कम्युनिकेशन हमें करनी है इंटर डिपार्टमेंटल, तो भी ये भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चीजें सही तरीके से वहां तक जाएं. ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर हमारे पास 2 लोगों का रिजर्वेशन है, 2 लोगों का चेक इन है, तो हम 2 ही लोगों का बताएं, 2 से 4 करना बताएं. ठीक है, तो ऑल दीज थिंग वी नीड टू इंश्योर बाय द फ्रंट ऑफिस मैनेजर. he is responsible for the up he is responsible for the upkeep of the front desk, lobby manager and their equipment. जो भी उनके इक्विपमेंट है वो अप टू डेट हों. ठीक है, उनको इंश्योर करना भी इसका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है. नेक्स्ट, द डील विद द कंप्लेंट अगेंस्ट हिज स्टाफ, अदर कंप्लेंट, ये भी इसी का काम है. whenever the guest whenever the guest post any complaint with regards to the rude behavior of the staff. Okay, or the not up to the mark services given by the staff. So all these things also be handled by the front office manager. Okay, next is participant in the selection of front office personnel and conduct regularly schedule the meeting of the front office personnel. विच मीन्स जब भी हम अगर सिलेक्शन की बात करेंगे, जो हम अगर फ्रंट ऑफिस में पर्सनल की अगर हमें रिक्रूट करना है, तो एचआर वाले जो एचआर डेस्क होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं फ्रंट ऑफिस मैनेजर को कि आपको किस तरह की क्वालिटी आपके कैंडिडेट में चाहिए. तो एक राउंड इनके साथ भी होता है, जो कि होता है फ्रंट ऑफिस मैनेजर. ओके, टू असेस ऑल द एट्रीब्यूट्स एंड क्वालिटी फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ द फ्रंट ऑफिस एजेंट. ओके, फिर उसके लिए ट्रेनिंग वगैरह का काम भी इसी का काम होता है. उसके लिए मीटिंग शेड्यूल करना भी इन्हीं का काम होता है, जो कि होता है फ्रंट ऑफिस मैनेजर. Okay, so these are the main responsibility of the front office manager. Now moving further to the lobby manager. The lobby manager is the manager who ensure all the room are blocked as per the reservation request. Whatever reservation request we have received, the all rooms should be logged as per the or should be blocked as per the guest request. Okay, यहाँ पर लॉक नहीं है, यहाँ पर ब्लॉक है. ठीक है, ब्लॉक मतलब जितने भी हमें रिजर्वेशन की रिक्वेस्ट मिली है वो सही तरीके से ब्लॉक रहे. ऐसा नहीं है किसी ने ब्लॉक करने की रिक्वेस्ट बोली है और हमने 4 दिन के लिए ब्लॉक रखा
और 5वें दिन इसको बेच दिया किसी और को। किसी ने अगर इमरजेंसी में कोई आया और उसने बोला कि मुझे रूम की ज़रूरत है, मैं आपको 10,000 रुपीज़ भी दे दूंगा, या फिर आप 1 नाइट का जितने भी चार्ज करेंगे मैं देने को तैयार हूँ, और आपने वो दे दिया। ये नहीं होना चाहिए। ये लॉबी मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो ब्लॉक रूम है पहले से ब्लॉक्ड है, वो उसका बना रहे जब तक कि वो चेक इन नहीं करता। चेक इन के 6 घंटे बाद तक वो रूम रहेगा उसके बाद, ठीक है। अगर आपने पेमेंट कर दिया तो, अगर नहीं किया है आपने, पोस्ट पे में क्या है कि यानी कि आप होटल में जाके पेमेंट करेंगे तो आपके जो रूम है वो पूरी अथॉरिटी है होटल को कि आपका रूम वो रिलीज करके किसी और को दे दें। नाउ द नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ही कीप्स अ चेक ऑन रूम पोजीशंस। ओके, रूम की पोजीशन किस तरह की है, ठीक है, अभी उसका स्टेटस क्या है, ये भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ही इंस्ट्रक्ट द एयरपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव AR रिगार्डिंग द लिस्ट ऑफ द अराइवल टू बी मैट। ये हमेशा जो लिस्ट होती है ना कि आज हमारे यहाँ पर कितने गेस्ट एयरपोर्ट से आने वाले हैं, जिनका अराइवल हमारे यहाँ एयरपोर्ट में है और वो हमारे यहाँ पर स्टे करने वाले हैं, तो इसकी जो लिस्ट है प्रिपेयर करके ये इसको देगा AR को, यानी एयरपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव को, जिससे कि वो बाद में उसको मैच कर सके, जितने भी जो गेस्ट हैं उनको उस टाइम पे लेके आ सके अपने हमारे होटल में, ठीक है। ये भी इंस्ट्रक्ट करता है लॉबी मैनेजर। नेक्स्ट, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉबी मैनेजर इज ही चेक्स प्री रजिस्ट्रेशन कार्ड। प्री रजिस्ट्रेशन कार्ड, ओके, प्री रजिस्ट्रेशन कार्ड मतलब जो आपके आइडेंटिटी कार्ड वगैरह होते हैं वो चेक करता है, ठीक है। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी, ही लुक्स चेक हाउसकीपिंग डिस्क्रिपेंसीज रिपोर्ट। हाउसकीपिंग में जो भी डिस्क्रिपेंसीज हुई हैं उनको भी ये चेक करता है, कोई चीज सामान इधर से उधर तो नहीं हो गया, या गेस्ट उठा के तो नहीं ले गया, या गेस्ट का कोई सामान तो नहीं छूट गया, ये भी उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, ही इंश्योर दैट गेस्ट रिक्वेस्ट एंड कंप्लेंट्स आर फॉलोड अप। जो भी गेस्ट की रिक्वेस्ट हैं, कंप्लेंट्स हैं, वो रेगुलरली फॉलो अप उसका होते रहना चाहिए, जो भी इसके नीचे इसके जो सबऑर्डिनेट हैं, जो इसके नीचे काम करते हैं उनके द्वारा, या फिर इसके द्वारा, या फिर इसके सबऑर्डिनेट के द्वारा। ओके, ही फॉलो अप दी ऑन ग्राउंड एंड क्रू मूवमेंट, ठीक है, जो भी इनका ऑन ग्राउंड मूवमेंट रहता है गेस्टों का, वो भी इसकी उनका भी फॉलो अप रखना इसको जरूरी है। कौन हमारे होटल में स्टे करने के लिए आया है, कौन किसी से मिलने आया है, ठीक है, लॉबी में कौन बैठा है कौन नहीं, इनका भी सबका रिकॉर्ड इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ही टेक्स एक्शन फॉर ऑल अनयूजुअल इवेंट्स इन द लॉबी लाइक फायर, एक्सीडेंट। लॉबी में जितनी भी हैपनिंग होगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीधी सीधी होती है लॉबी मैनेजर की, ठीक है। चाहे किसी को वहां पर फायर हो गई है, या फिर एक्सीडेंट हो गया है कोई, या कोई किसी को चक्कर वगैरह आ गए हैं, या फिर एकदम से गिर गया है वहां पर आके, सो ऑल दीज विल बी टेकन केयर बाय द लॉबी मैनेजर। ही इंश्योर द स्मूथ रनिंग ऑफ द लॉबी एंड ही सेंड सी फॉर्म टू द FRRO। अभी FRRO क्या होता है, क्या होता है FRRO, याद है पिछले सेमेस्टर का कुछ? कोई बात नहीं, वी विल, हम इसको अभी और पढ़ेंगे, नीचे आएगा इसके बारे में और, ठीक है। नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिसेप्शन सुपरवाइजर। ये सी फॉर्म का मतलब यहाँ पर, चलो आपको बाद में बताऊंगा डिटेल में इसको। रिसेप्शन सुपरवाइजर का मतलब, यहाँ पर जितने भी रिसेप्शन में जो भी, एक रिसेप्शनिस्ट होती है, एक रिसेप्शन असिस्टेंट होता है, उसके ऊपर जो सुपरवाइजर है उसको बोलेंगे हम रिसेप्शन सुपरवाइजर, ठीक है। ये भी हेड करता है रिसेप्शन को, जिसमें इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है सभी जो फ्रंट ऑफिस के असिस्टेंट हैं उनको उनके उनके जॉब के अकॉर्डिंग उनको ट्रेन करना, ठीक है। जब फ्रंट ऑफिस के बाद ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो जाएगा तो फ्रंट ऑफिस वाला जो मैनेजर है वो सभी अपने बंदों को इसको रिसेप्शन सुपरवाइजर को हैंड ओवर करेगा और यही इनको ट्रेनिंग देंगे फिर, ठीक है। तो ट्रेन ऑल द फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट ऑन एज पर द जॉब एंड टू मेक द ड्यूटी रोस्टर फॉर द स्टाफ। रोस्टर फॉर द स्टाफ मतलब किसकी छुट्टी अभी होनी है, किसकी नहीं होनी है, किसको छुट्टी देनी है, किसको नहीं देनी है, वो जब पब्लिक हॉलीडे नहीं है तब की बात है, ठीक है। अगर किसी को कैजुअल लीव लेनी है, पेड लीव लेनी है, तो वो किसको किस तरह से दी जाए, ये भी इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिसेप्शन सुपरवाइजर की। नेक्स्ट पार्ट, वी मूव फर्दर टू दी नेक्स्ट पार्ट इज to check the staff, to check the shift in charge list on the daily basis.
जो शिफ्ट इंचार्ज होता है, ठीक है, शिफ्ट इंचार्ज हमारा रिसेप्शन असिस्टेंट हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई उनके ऊपर हमने टीम लीडर बैठाया तो वो हो सकता है। जिसको चेक करने की इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि कौन सा हमारा जो स्टाफ है वो रेगुलरली अपनी शिफ्ट के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, कौन सा बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है, कौन बहुत ज़्यादा छुट्टियां ले रहा है, कौन जल्दी आके जल्दी चला जाता है, कौन देर आता है, बहुत लेट आता है और जल्दी चला जाता है। To ensure all these things, he needs to check all the all the sheets or all the list of the shift in charge. वो सही से मेंटेन हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है, सबको ठीक से छुट्टियां मिल पा रही है नहीं मिल पा रही हैं, तो और चीज ये सभी चीजों को इंश्योर करता है रिसेप्शन सुपरवाइजर। फिर इसकी रिपोर्ट देता है ये आगे किसको, इसको देगा ये रिपोर्ट फ्रंट ऑफिस मैनेजर को या फिर लॉबी मैनेजर को, ठीक है, वैसे फ्रंट ऑफिस को ही देता है, फ्रंट ऑफिस मैनेजर को। फिर होगा कि टू चेक नेक्स्ट डे अराइवल, नेक्स्ट डे के जो भी अराइवल है उनकी लिस्ट बनाना, ठीक है, जिससे कि हम अपने स्टाफ को उसी अकॉर्डिंग ब्रीफ कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर हमारा आज का आज नहीं कल हमारे कुछ वीवीआईपी गेस्ट आ रहे हैं, कल एक इवेंट है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च है, तो उसके लिए कंपनी के एमडी, सीईओ और उनके जो हायर मैनेजमेंट के डिसीजन मेकर हैं वो आ रहे हैं, तो उसके लिए रिसेप्शन सुपरवाइजर है उनको क्या करता है, ब्रीफ करता है कि कल हमारे यहाँ पर इनका अराइवल है, तो कोई भी हमें अपनी सर्विसेज में कोई भी कोताही नहीं बरतेंगे हम, मतलब कोई भी हमारा चांस नहीं है कि गलती का स्कोप हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये सभी चीजें ये भी इंश्योर करता है कि जो भी हमारा अराइवल हो वो ठीक तरीके से हो। ये सिर्फ वीवीआईपी की बात नहीं है, जो भी हमारा नेक्स्ट डे का अराइवल है चाहे कोई भी हो, ठीक है, तो उनको एक बार ब्रीफ करना है कि ये इस तरह के हमारा गेस्ट कल हैं, तो हमें इसके लिए तैयार रहना है, ये भी एक इसका काम है। नेक्स्ट, स्मूथ रनिंग ऑफ द रिसेप्शन, रिसेप्शन का काम ठीक से चलता रहे, ये भी इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वीआईपी जो गेस्ट हैं उनके वेलकम के लिए भी ये जाता है, ठीक है, और गेस्ट की कंप्लेंट भी अटेंड करता है, और रिसेप्शन स्टाफ को असिस्ट करता है टाइम टू टाइम जब भी जरूरत होती है, यानी कि जब हमारे एग्जीक्यूटिव नहीं कर पाते प्रॉब्लम सॉल्व हमारे गेस्ट की, तो फिर रिसेप्शन सुपरवाइजर आके उनको हैंडल करता है। जब इससे भी नहीं होता फिर फ्रंट ऑफिस मैनेजर आता है। इसके अलावा मेंटेन ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ द रिसेप्शन, रिसेप्शन से रिलेटेड कोई भी रिकॉर्ड है वो भी मेंटेन करने की जिम्मेदारी इसकी होती है। रिसेप्शन असिस्टेंट जो कि रिसेप्शन सुपरवाइजर के नीचे काम करता है, ये रिपोर्ट करता है डायरेक्टली रिसेप्शन सुपरवाइजर को। इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टू आंसर ऑल दीज क्वेरीज ऑफ द गेस्ट, चाहे फिर वो इन हाउस हो चाहे फिर वो नहीं हो, ठीक है, ऑल दीज क्वेरीज ऑफ द गेस्ट, चाहे वॉकिंग क्लाइंट हो चाहे प्री रिजर्व रूम हो उसका। और इसकी जिम्मेदारी है कि ऑल द क्वेरीज शुड बी अटेंड इन द वेल मैनर, ओके, इन द गुड इन होलिस्टिक अप्रोच, ठीक है, एंड डिप्लोमेटिक अप्रोच, ओके। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू प्रॉम्प्टली रजिस्टर गेस्ट एंड टू असाइन रूम टू देम। जो हमने कुछ वीडियोस देखी थी वो सारे रिसेप्शन के क्या थे, रिसेप्शन के असिस्टेंट ही थे, ठीक है, जो रूम की असाइन करते हैं, ठीक है, रूम का चेक, जो रूम के उनके वाउचर होते हैं, रिजर्वेशन की चीजें देख के उनको रूम असाइन करते हैं, उनको डायरेक्शन बताते हैं, ठीक है। ऑल दीज रिस्पॉन्सिबिलिटी will be taken care by the reception assistant to update all the room rack regularly। room rack का मतलब है यहाँ पर रूम रैक, जो उनके रूम कीज हैं, उनके रूम की जो चीजें हैं वो अकॉर्डिंगली मेंटेन रहें, वो भी इसका अपडेट करते रहे, वो ये भी चीज है। और टू कंप्लीट प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज फॉर वीआईपी, रजिस्ट्रेशन से पहले जो भी उनकी फॉर्मेलिटीज हैं वो भी कंप्लीट करना सारे ही रिसेप्शन असिस्टेंट की जिम्मेदारियां हैं, ठीक है। अब उससे पहले की फॉर्मेलिटीज क्या होंगी, उनकी चीजें, उसका पासपोर्ट देखेंगे, उसके आइडेंटिटी कार्ड देखेंगे, उनकी कॉपी करेंगे, उनकी उसकी एक फोटो कॉपी रखेंगे अपने पास, ठीक है। तो ऑल दीज फॉर्मेलिटीज जब तक वो अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरता है तब तक हम अपनी सारी आइडेंटिटी वगैरह प्रूफ वगैरह रख लेंगे हमारे कॉपी उनकी, ठीक है। अब तो काफी चीजें बहुत ऑटोमेटेड हो गई हैं, पहले इसी तरह से होता था, अब भी कई होटलों में आप देखेंगे तो इसी तरह के प्रोसीजर फॉलो होते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज टू एग्जीक्यूट गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज रिगार्डिंग दी फॉरेनर्स। अब गवर्नमेंट ने अगर कुछ चीजें मैंडेटरी कर दी हैं कि ये फॉर्म आपको भरवाना जरूरी है, ये चीज ये फॉर्मेलिटी करनी जरूरी है जब भी आप फॉरेन क्लाइंट को अपना स्टे या फिर अपने रूम देंगे, तो वो भी सारी चीजें फॉर्मेलिटी करना भी इसी का ही काम है, रिसेप्शन असिस्टेंट का। नेक्स्ट, टू प्रिपेयर रूम रिपोर्ट्स एंड दी ऑक्यूपेंसी स्टैटिस्टिक्स। जो भी रूम हमारा चेकआउट प्रोसीजर हो रहा है ना, तो ये चेकआउट प्रोसीजर में ये भी एक रिस्पॉन्सिबल होता है कैशियर के साथ। तो ये जब कोई चीज चेकआउट हो गई है तो हमें सबसे पहले तो
हाउसकीपिंग से कंफर्म करना है कि रूम का स्टेटस क्या है, फिर हम चेकआउट प्रोसीजर करेंगे। उसके बाद हम सभी जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो किसके थ्रू मेंटेन करेंगे, बाय द पीएमएस विच इज प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, हम वहां पर मेंटेन करेंगे कि हमारा कौन सा रूम चेकआउट हो गया है, कौन सा रेडी टू सेल है, कौन सा अभी हाउसकीपिंग रही है जिसकी, और कौन सा रूम ऐसा है जिसकी चेक इन हो गई है, जिसका चेक इन हो गया है, और कौन से ऐसे रूम है जिसको हमें अभी, जिसकी हाउसकीपिंग अभी हुई नहीं है पूरी लेकिन चेकआउट हो गया है। तो ऑल दीज रिपोर्ट शुड बी मेंटेन बाय द रिसेप्शन असिस्टेंट with the help of the PMS, property management system. Next part is the next responsibility is to send message to the guest and the to print the arrival list of the next day. नेक्स्ट डे के हमारे कौन से अराइवल हैं, कौन से चेकआउट हैं, कौन से चेक इन हैं, ऑल दीज थिंग शुड बी मेंटेन बाय द रिसेप्शन असिस्टेंट। ओके, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिसेप्शन असिस्टेंट की। नाउ मूविंग फर्दर टू द रिसेप्शन शिफ्ट इंचार्ज। शिफ्ट इंचार्ज मतलब, क्योंकि हमारा रिसेप्शन ही एक ऐसा डेस्क है जो 24/7 चलता है, यानी 24 घंटे, सातों दिन 24 घंटे। तो इसमें हमारी अलग अलग शिफ्ट होती हैं, तो उसका एक इंचार्ज होता है, उसको हम बोलते हैं रिसेप्शन शिफ्ट इंचार्ज। इसके नीचे आते हैं फिर ट्रेनीज जो एग्जीक्यूटिव हैं, अभी न्यूली रिक्रूटेड हैं, वो सभी इसके नीचे आएंगे। ठीक है, तो इसका काम है रिसेप्शन शिफ्ट इंचार्ज का टू डू टास्क गिवन बाय दिस रिसेप्शन असिस्टेंट इन द रिसेप्शन सुपरवाइजर। जो भी सुपरवाइजर के द्वारा दिए गए टास्क हैं उनको पूरा करना, और जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इसकी, परफॉर्म द टास्क ऑफ द रिसेप्शन असिस्टेंट। ये भी एक तरह का क्या है, रिसेप्शन असिस्टेंट ही है, बस फर्क इतना है ये अपने शिफ्ट के अकॉर्डिंग काम करता है और डायरेक्टली रिपोर्ट करता है, ये अपनी रिपोर्ट करता है डायरेक्टली रिसेप्शन सुपरवाइजर को। ओके, तो इनके सभी टास्क सिमिलर ही हैं जैसे हमारे रिसेप्शन असिस्टेंट के हैं, बस यहाँ पर फर्क आ जाता है शिफ्ट का। ठीक है, कि आप मॉर्निंग शिफ्ट में काम करते हैं, इवनिंग में शिफ्ट में काम कर रहे हैं, या फिर आफ्टरनून शिफ्ट में काम कर रहे हैं, बस आपका यहीं पर अंतर जाएगा। ठीक है, तो बाकी आपके सभी जितने भी आपके प्रोसीजर हैं वो सेम रहेंगे, बस इसका टास्क क्या बढ़ जाएगा कि यहाँ पर एक तो जितने भी तुम्हारे शिफ्ट में काम कर रहे हैं आपके नीचे ट्रेनीज, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना। ठीक है, और जो भी आपके शिफ्ट में काम आ रहा है उनको हैंडल करना। तो ऑल दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऑल दीज टास्क will be taken care by the reception shift in charge. Okay, now moving further to the next part, which is the reservation supervisor. What are the responsibility of the reservation supervisor? अब रिजर्वेशन सुपरवाइजर की हम देखते हैं, जैसे हमने देखा रिसेप्शन सुपरवाइजर, फ्रंट ऑफिस मैनेजर, इसी तरह से है रिजर्वेशन सुपरवाइजर। सुपरवाइजर की तकरीबन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपरवाइज करने की होती है। पहली बात तो ये है, सुपरवाइज का मतलब जितने भी तुम्हारे टास्क हैं वो सही से मेंटेन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। ठीक है, जो आपके नीचे काम कर रहा है वो ठीक से काम हो रहा है नहीं हो रहा है उसका। ठीक है, या फिर जो टास्क असाइन है किसी को बहुत ज्यादा किसी को बहुत कम। ठीक है, जो सबके असिस्टेंट काम कर रहे हैं, रिजर्वेशन असिस्टेंट जो है आपके, वो इक्वली सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, किसी को बहुत ज्यादा काम दे दिया गया, किसी को बहुत कम, ऐसा तो नहीं है। सबके जो हॉलीडेज हैं वो ठीक से चल रहे नहीं चल रहे हैं, ये सभी चीजें जो कोऑर्डिनेशन का काम है। और इसके अलावा जो कोऑर्डिनेशन होता है फ्रंट ऑफिस मैनेजर से बाकी अदर डिपार्टमेंट के साथ, वो भी इसी का काम है। ठीक है, सुपरवाइजर का। तो जब भी हम सुपरवाइजर की बात करेंगे तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंडेटरी होती है, ये तो आती है। अब इसमें क्या है, ये रिजर्वेशन सुपरवाइजर है तो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारी रिजर्वेशन से रिलेटेड होंगी। जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा ये सारे रिजर्वेशन से रिलेटेड हैं, यानी कि कितने हमारे पास रिजर्वेशन है, कितनों के रिजर्वेशन अभी टाइम लिमिट बेसिस पे हैं। टाइम लिमिट बेसिस पे यानी ब्लॉक किए हुए हैं। ब्लॉक मतलब कि अब इनका चेक इन बहुत दूर है और उनकी एक पॉलिसी, जब भी हम टाइम लिमिट में या ब्लॉक की बात करते हैं तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना उसमें, ब्लॉक जब भी यहाँ पे बढ़ाएगा तो उसका मतलब है कि जो भी उनका रिजर्वेशन है वो कौन से पॉलिसी के बेस पे बना हुआ है, रिफंडेबल पॉलिसी के बेस पे। यानी कि 72 आवर प्रायर हो, चाहे फिर वो 3 दिन पहले की हो या फिर 4 दिन पहले की हो, यानी कि वो 3 दिन 4 दिन पहले भी अपना रिजर्वेशन को कैंसिल कर सकता है। तो ये चीज सुपरवाइजर को पता होनी चाहिए कि हमारे कितने रिजर्वेशन टाइम लिमिट पे या ब्लॉक किए हुए हैं, कितने रिजर्वेशन हमारे कंफर्म है जिनकी पूरी पेमेंट आ चुकी है, कितने रिजर्वेशन हमारे ऐसे हैं जिनकी हमारे रिजर्वेशन तो हैं ब्लॉक भी हैं
लेकिन उनका पेमेंट नहीं हुआ है। उनका पेमेंट कब होगा? जब गेस्ट चेक इन करेगा। ये रिकॉर्ड भी उनको रखना जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा जो कोऑर्डिनेशन है किसके साथ? सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ, क्योंकि सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो आपके लिए लीड्स को जनरेट करता है, रिक्वायरमेंट को जनरेट करता है मार्केट में जाके, ठीक है। तो उनके साथ जब वो मार्केट में जाते हैं अपने होटल का काम लेके, तो सीधे जो हमारा, जैसे कोई सेल्स वाला मेरे पास ही आया तो मैं सीधे रिजर्वेशन वाले को कॉल करूंगा या सेल्स वाले को कॉल करूंगा? क्योंकि सारे प्रोमिसेस हमारे जो किए गए हैं वो सेल्स वाले ने करे हैं कि आप जब भी हमसे 10 रूम लेंगे तो हम आपको 2 रूम कॉम्प्लीमेंट्री दे दिया करेंगे, यानी कि फ्री ऑफ चार्ज। ये प्रॉमिस उसने किया मेरे से, और बोला कि हमेशा जब भी आप रूम लेंगे तो हम आपको बेस्ट रूम ऑफ द सेकंड हायर कैटेगरी देंगे। ये भी प्रॉमिस किया। अब हमें ऐसा तो है नहीं कि मैं अब ये चीज़ मेरे पास जैसी रिक्वायरमेंट आई मेरे गेस्ट से, मैं सीधे रिजर्वेशन वाले को कॉल करूंगा, मैं सीधे सेल्स वाले को कॉल करूंगा। और सेल्स वाला किससे कोऑर्डिनेट करेगा? सीधे रिजर्वेशन सुपरवाइजर से, कि ये रिक्वायरमेंट है, ये मैंने प्रॉमिस किए हुए हैं उस ऑर्गेनाइजेशन से, तो आप इसके अकॉर्डिंग काम करें और उनको इसका रेजोल्यूशन दें, ठीक है। रेजोल्यूशन मतलब आंसर दें उसका, ठीक है। तो दीज ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर ऑल्सो विल बी टेकन केयर बाय द रिजर्वेशन सुपरवाइजर। आप देख रहे होंगे यहाँ पर रिसेप्शन, इंफॉर्मेशन, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ओके, इसके अलावा वीआईपी के मूवमेंट भी मॉनिटर करना है। ओके, एंड ट्रेनिंग, जो भी आपके अंडर ट्रेनिंग का काम आ रहा है, सुपरवाइजर का काम, ये भी हमने रिसेप्शन सुपरवाइजर को भी देखा था कि वो भी ट्रेनिंग के काम में रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसकी। कोऑर्डिनेशन का काम है, चाहे फिर हम रिसेप्शन से कोऑर्डिनेशन करें, इंफॉर्मेशन, सेल्स एंड मार्केटिंग के मैंने आपको एग्जांपल बताए दिए हैं, सारे मूवमेंट को देखना है, ठीक है। ऑल दी कोरस्पॉन्डेंस, चाहे हमें मेल के थ्रू मिल रहे हैं, जो भी कोरस्पॉन्डेंस हमें मेल के थ्रू मिल रहे हैं या फिर हमें कॉल के थ्रू मिल रहे हैं, वो भी हमारा हैंडल का काम है। अब ये काम तो है, इसके अलावा अगर कोई रिक्वेस्ट आती है ब्लॉक रूम की, कि हमें रूम ब्लॉक करना है या हमें रूम कैंसिल करना है, या फिर हमें अपना रूम का जो स्टे है वो आगे बढ़ाना है, पीछे करना है, जो सभी रिक्वेस्ट है वो सभी को हैंडल करने की जिम्मेदारी भी रिजर्वेशन सुपरवाइजर की ही होती है, ठीक है। भले ही अब ये काम जो रिजर्वेशन सुपरवाइजर है ये अपने असिस्टेंट को दे दे कि आप इसका मॉडिफिकेशन करके दो, इसका रिफंड करके दो इस गेस्ट का, कि क्या पॉलिसी में इसने रिजर्वेशन किया था, किस पॉलिसी में इसको रिफंड मिलना चाहिए। ये भले ही इसको अपने रिजर्वेशन असिस्टेंट को दे दे, लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि इनको ठीक से हैंडल किया जाए। नाउ मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज द रिजर्वेशन असिस्टेंट। जैसे हमने रिसेप्शन असिस्टेंट देखा था, वैसे ही रिजर्वेशन असिस्टेंट होता है, जो रेगुलरली जो चार्ट है, डिटेल है, उसको मेंटेन करता है और उसके बाद रिपोर्ट करता है रिजर्वेशन सुपरवाइजर को, सभी चीज़ों को ठीक से मेंटेन करता है। इसके अलावा जो भी उनके पास फोन से रिक्वायरमेंट आ रही है रूम रिजर्वेशन की, चाहे फिर बाई मेल आ रही है, उन सभी को पोलाइट वे में रिस्पॉन्ड करना, उनको हैंडल करना, ये भी रिजर्वेशन असिस्टेंट का काम है, ठीक है। और अपनी जितने भी इन्वेंट्रीज हैं, कितने हमारे रूम सोल्ड हो चुके हैं, कितने हमारे भी रहे हैं, उसको भी अप टू डेट रखना इसका काम है। और अपने सारी रिपोर्ट सीधे रिपोर्ट करना टू दी रिजर्वेशन सुपरवाइजर, ये भी एक इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाउ मूविंग फर्दर टू दी नेक्स्ट पार्ट विच इज द सीनियर बेल कैप्टन। ओके, द सीनियर बेल कैप्टन इज लाइक, जैसे हमने अभी सुपरवाइजर पढ़े हैं वैसे ही सीनियर बेल कैप्टन होते हैं, जो हमेशा जितना भी बेल डेस्क का काम है वो ठीक से चलता रहे, उसको इंश्योर करते हैं, ठीक है। एंड कंट्रोल ऑल द मूवमेंट ऑफ द बेल कैप्टन एंड द बेल बॉयज। जो भी हमारे बेल कैप्टन हैं, बेल बॉयज हैं, उनका मूवमेंट ठीक से चल रहा है नहीं चल रहा है, वो ठीक से काम कर रहे हैं, ठीक है। ऑल द टास्क विल बी टेकन केयर। ऐसा तो नहीं है कि गेस्ट आके यहाँ पर खड़ा है, किसी का लगेज वहाँ पड़ा है, किसका लगेज लॉबी में रखा हुआ है, वेटिंग एरिया में पड़ा हुआ है, वो ठीक से टेकन केयर नहीं किया जा रहा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब होती है सीनियर बेल कैप्टन की। ओके, तो इसका और इसके अलावा क्या काम होता है सीनियर बेल कैप्टन का, कि सभी चीजों का ब्रीफ करना विद दी आवर स्टाफ, विद आवर बेल बॉय और दी बेल कैप्टन। बेल बॉय के ऊपर बेल कैप्टन होता है, ठीक है, और बेल कैप्टन के ऊपर कौन होगा? सीनियर बेल कैप्टन। तो इसका दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि सभी जो लगेज है उसको ठीक से
स्टॉक किया जाए क्लॉक रूम में, जो भी उनके पास है, ठीक है, स्टोरेज एरिया है, वहां पर ठीक से रखा जाए। कोई सामान इधर से उधर ना हो, ठीक से सबकी टैगिंग की जाए। लगेज टैगिंग जानते होंगे आप, जहाँ पर हम वहां पर उसका ट्रेस के लिए लगाते हैं, ठीक है। अर्न कार्ड भी जिसे बोलते हैं, एक अर्न कार्ड होता है और एक टैगिंग होता है, दोनों अलग अलग चीजें, ठीक है। अर्न कार्ड में हम ट्रेसिंग के लिए एक रिकॉर्ड रखते हैं, और टैगिंग में हम वहां पर लिखते हैं कि ये इस गेस्ट का है और ये इसका सामान है, ठीक है। उसमें हम ये मेंशन नहीं करते कि डेट ऑफ अराइवल क्या है इसकी। ओके। ओके, तो रूम नंबर भी लिख सकते हैं उसमें हम। तो ये चीज हमें मेंशन करनी है। इसके अलावा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सीनियर बेल कैप्टन की? टू कैरी आउट ऑल द डिफरेंट अर्न कार्ड फॉर द गेस्ट, ये लिखा है अर्न कार्ड, अर्न्स, अर्न कार्ड हैं, अर्न्स हैं। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल द पेपर वर्क और द ऑल द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी के जिम्मेदारी होती है कि हर रूम में ठीक से पहुंच जाए न्यूज़पेपर। और कीपिंग स्टॉक ऑफ द इक्विपमेंट, ट्रॉली, जो भी हमारी ट्रॉली है, ट्रॉली कौन सी, जो हमारी लगेज के लिए होती हैं, जो वो उनका सही से वो ठीक से रखे रहे, हमारे इक्विपमेंट जो है वो ठीक हों, प्रॉपरली काम करें, ठीक है, ये भी इसकी जिम्मेदारी है। और इनिशिएट एक्शन अगेंस्ट द गेस्ट हैविंग स्कैन द बैगेज एंड टू असिस्ट द क्रू फॉर द वेकअप कॉल। All these procedures will be handled and be taken care by the senior bell captain. अब बेल बॉय इसके नीचे काम करते हैं, जो कि कैप्टन के नीचे काम। अब कैप्टन की यहाँ पर दी हो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर कैप्टन 5 या 6 बेल बॉय के अंडर में एक कैप्टन होता है, जिसके अंडर में ये बेल बॉय काम करते हैं। तो उसका काम सीधे होता है सीनियर जो हमारा बेल कैप्टन है उसको रिपोर्ट करना, सभी रिपोर्ट के साथ। ऐसा नहीं है, उसकी कुछ ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होती है। सिमिलरली इनको मैनेज करता है 3-4 जो बेल बॉय होते हैं, उनके ऊपर एक बेल कैप्टन होता है जो उनको हैंडल करता है। तो बेल कैप्टन, नो, बेल बॉय टेक द लगेज ऑफ द ऑल द गेस्ट, ओके, टेक द लगेज फ्रंट ऑफ द porch to the room and escort the guest, place the baggage, okay, explain the operation of light switching, bring the baggage down case of the at the time of the departure, check the room to ensure the guest is not left anything, obtain the clearance from the front office cashier, and check the mail and messages are timely distributed to the guest. जब भी कोई गाड़ी अगर वहां पर आ रही है हमारे होटल में, तो हमें उसका पहले तो अराइवल करना है, उसका लगेज उसके रूम तक ले जाना है। रूम पर ले जाएंगे तो हमें वहां पर जाके बताना है कि ये स्विचिंग है हमारी, यहाँ पर हमारा वॉशरूम है, ये हमारा बेडिंग है, ठीक है। ये चीज भी बताना काम बेल बॉय का ही होता है, ठीक है। उसके बाद वो टिप के लिए कहता है। टिप के लिए कुछ गेस्ट होते हैं जो अपने आप ही टिप दे देते हैं, कुछ गेस्ट होते हैं जो नहीं देते, तो उसको कहना पड़ता है। कुछ ऐसे ऐसे वैसे सामने से नहीं कहते कि टिप दे दो मेरे को, ऐसा नहीं, कुछ इशारों के साथ। आपने उसमें कुछ वीडियोस में देखा भी होगा, ठीक है। तो दीज आर ऑल आर दी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बेल बॉय। नाउ मूविंग फर्दर द फ्रंट ऑफिस कैशियर। ये वही कैशियर है जो आपका अकाउंट में काम करता है, ठीक है। ये आपको चेकआउट के टाइम पे दिखता है। तो ऑपरेट ऑल द फ्रंट ऑफिस पोस्टिंग इक्विपमेंट, complete all the checklist and complete guest check in process, okay, check in process and check out process. All the transaction will be handled by the front office cashier and settled by the front office cashier and make account adjustment. जब भी कोई गेस्ट चेक इन करता है तो उसका एक अकाउंट बन जाता है, ठीक है। उसमें उनके सभी चार्जेस मेंटेन किए जाते हैं। फिर चाहे वो कोई सी भी सर्विस ले हमारे होटल में, और सारे ही चार्ज उसी फाइल में मेंटेन होते हैं। एट द एंड ऑफ द चेकआउट टाइम दे विल सेटल ऑल द चार्जेस विद द हेल्प ऑफ द गेस्ट, ओके। हम उनको एक देते हैं, स्लिप देते हैं। इसके अलावा फिर हम जितने भी उनके चार्ज होते हैं उनको चेक कराते हैं गेस्ट के साथ, फिर हम उनका पेमेंट लेते हैं, जो हमने चेकआउट प्रोसेस में देखा भी है। इसके अलावा इसका चेक इन प्रोसीजर में भी इसका काम होता है। जब इतना काम इसका चेक इन प्रोसीजर में नहीं होता जितना चेकआउट में होता है, ठीक है। फिर भी जब भी गेस्ट का चेक इन प्रोसेस होता है तो भी उसका काम होता है। ये हमेशा वैसे ज्यादातर आपको रिसेप्शन के पास मिलेगा, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग फर्दर टू द नाइट ऑडिटर, ओके, द लास्ट पार्ट ऑफ द
Okay, night auditor, what is the responsibility of the night auditor? The first responsibility, he posts room charges and taxes to the guest account. फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जितने भी चार्जेस हैं रूम के और टैक्स के हैं, जो टैक्सेस लगे हैं उसमें, वो गेस्ट के अकाउंट में रखने। दूसरा, ही प्रोसेसेस गेस्ट चार्ज वाउचर्स एंड क्रेडिट कार्ड वाउचर, ट्रांसफर ऑल द चार्जेस डिपॉजिट मास्टर अकाउंट। ओके, मास्टर अकाउंट मतलब वो अकाउंट है जो पूरे होटल का होता है, जिसमें आपके सभी गेस्टों का द्वारा होता है कि कितने चार्जेस किसके किस टाइम लगाए गए थे, ठीक है। ही वेरीफाइज ऑल द अकाउंट पोस्टिंग एंड बैलेंसेस। जब आप ऑडिटर का जब भी ऑडिटर आता है ना, ऑडिटर ऑडिटर का मतलब सीधे होता है जो भी हमारी परचेज है और हमारी सेल है उसको मेंटेन करना, यानी कि जो भी हमारे गेस्ट ने हमारे से सर्विस ली है, ठीक है, और जो हमने अपने स्टाफ से सर्विस ली है उनको मैच करना, यानी कि जो जैसे हम और ऑर्गेनाइजेशन में बात करते हैं ऑडिटर की, तो वो क्या करता है, सेल परचेज को मैच करता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर है कि ऑल द चार्जेस इन दी, जो भी हम अपने चार्जेस अपने गेस्ट पर लगाएं वो क्या होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव वे में होनी चाहिए और सिमिलर होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी लगा दिए, टैक्सेस पे टैक्सेस लगा दिए, ठीक है। हमने अगर 5% की जीएसटी है तो 5 की जगह 5 के नीचे और टैक्सेस लगा दिए, सर्विस चार्ज 8%, उसके अलावा कन्वीनियंस फी 10%, फिर उसके अलावा जो हमारी सर्विस फी है वो लगा दी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सभी चीजें करना ही ऑडिटर का काम है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट ही प्रिपेयर समरी ऑफ कैश, सारी कैश की समरी प्रिपेयर करना, चेक क्रेडिट कार्ड की एक्टिविटी चेक करना, ठीक है, और रिजल्ट को समराइज करना, जो भी हमारे मैनेजमेंट में जो हमारा ऑपरेशनल वर्क हो रहा है उसमें कितना पैसा लग रहा है उसको भी मेंटेन करना, उसको समराइज करना। इसके अलावा हाउ ही नोज हाउ टू ऑपरेट पोजीशंस, मशीन्स, टाइपराइटर्स, फ्रंट ऑफिस इक्विपमेंट, जितने भी हमारे मशीनरी काम कर रही है या हमारी स्टेशनरी काम में आ रही है, हमारे फ्रंट ऑफिस में या फिर कहीं भी काम आ रही है, ठीक है, तो उनको वो ठीक से प्रॉपरली अवेलेबल है नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि एक बार खत्म हो गई है तो वापस आ ही नहीं है, तो उनको भी पता होना चाहिए कि कौन सी मशीनरी हमारी ठीक से काम कर रही है, कौन से नहीं। फैक्स मशीन ठीक से काम कर रही है नहीं कर रही है, स्कैनिंग मशीन हमारी ठीक से काम कर रही है नहीं कर रही है, ठीक है। और भी हमारे जो स्कैनिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, वो जो स्कैन करने की चीज़ें हैं वो भी ठीक चल रही हैं नहीं चल रही हैं, अगर नहीं चल रही हैं तो उनको जल्द से जल्द ठीक कराना, और उनकी जो ऑपरेशन वर्क है उनको इंश्योर करना। ओके, ये भी काम होता है ऑडिटर का। ओके, नाउ अंडरस्टैंड हाउ द परफॉर्म चेक इन एंड चेकआउट प्रोसीजर, कि चेकआउट एंड चेक इन प्रोसीजर को समझना भी इसी का काम होता है, कि आपने चेक इन के टाइम में कितने गेस्ट को चेक इन दिया और चेकआउट के टाइम में कितना पेमेंट आपने लिया, उसके द्वारा लिए ही सर्विसेज के अकॉर्डिंग वो करेक्ट मैनर में था या नहीं था। 4 गेस्ट आए और चारों ने कुछ लिया है तो उनकी पूरी पेमेंट ली गई है नहीं ली गई है, नहीं ली गई है तो क्यों नहीं ली गई है, तो इसका रीजन होना चाहिए कैशियर के पास कि आपने पूरी पेमेंट क्यों नहीं सेटल करी गेस्ट के साथ, ठीक है। ये सभी चीजें मैच करने का काम भी ऑडिटर का होता है। हमारे पास ये सिर्फ होटल में ही नहीं है, आपको बैंक में भी मिलते हैं, बैंक में होते हैं ऑडिटर, ठीक है। ये आपको फ्रंट में नहीं दिखते, पीछे काम करते हैं, ठीक है, बैक ऑफ द हाउस में काम करते हैं, ये आपको पहले नहीं फ्रंट में नहीं दिखती हैं चीजें, ठीक है। तो ये सारी चीजें रिपोर्ट को बनाना ही ऑडिटर का काम है। फिर है कि हैंडल अर्न रिक्वेस्ट बाय द फ्रंट ऑफिस स्टाफ, हैंडल बैगेज एंड शिफ्टिंग अनदर रूम, डिस्ट्रीब्यूट द न्यूज़पेपर, ये इसका भी काम है। और ये वैसे खुद से जाके बांटता नहीं है, लेकिन जो हमारे हमने अभी ऊपर पढ़े थे, क्या पढ़े थे हमने ऊपर, रिसेप्शन, जो हमारे रिसेप्शन असिस्टेंट होते हैं और ये बेल बॉय होते हैं, उनका काम भी है, ठीक है। और पेज विद द पेज बोर्ड, ये तो खैर इसका काम भी कभी कभी ये भी देखता है, तो वरना ट्रैवल डेस्क वाले या फिर रिसेप्शन वाले भी इसको देख लेते हैं जब इनको लिस्ट देते हैं अराइवल हो रहा है जो गेस्टों का। रिपोर्ट अबाउट ऑल दीज, जो भी हमारा बैगेज इधर से उधर अगर कोई हो गया है तो जो बेल कैप्टन है वो भी रिपोर्ट जो बेल कैप्टन से भी रिपोर्ट मांग सकता है ऑडिटर, जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है उनकी गेस्ट के एंड से कि मेरा इतने बैगेज थे और मेरे को सिर्फ इतने ही बैगेज मिले, मेरे बाकी पता नहीं कहाँ इन्होंने इधर से उधर कर दिए, तो इसकी रिपोर्ट भी ऑडिटर मांग सकता है कैप्टन से। तो ही इशू ऑल दी स्टाम्प्स अगेंस्ट द कैश। तो ऑल दीज रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी टेकन केयर बाय द night auditor. Okay, so with this we conclude the today class. We will discuss rest thing in upcoming classes.